मैं जगा रहूंगा रात दिन, चाहे धूप हो या बरसात हो, चाहे तूफान आए या पौष की ठंडी रात हो। मैं खड़ा रहूंगा सरहद पर सीना ताने, चाहे गोलियों की बौछार हो, न खाने को कुछ आहार हो। अपने वतन की खातिर मैं हर दर्द को हंस के सह लूंगा। निकले जो खून बदन से मेरे, मैं खुश हो लूंगा। कितना भी दुर्गम रास्ता हो, फिर भी नहीं डरूंगा मैं। चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर मेरी, देश के गद्दारों पर अब रहम नहीं करूंगा मैं। Indeed, there exists none who can match the level of sacrifice and patriotism of a soldier. He who places all that is in the best interest of his nation before everything that he has or will ever possess. He who stands like a mountain and thunders like a lightning on foes that threaten the freedom and security of his motherland. He endures every season and overcomes every obstacle of nature heroically, sending the clear message that his spirit is truly indomitable. He retaliates every bullet with a bullet that compensates for his injuries and ever keeps his motherland's prestige and pride at the highest. Remember, there is never seen a bullet on his back. Today, we celebrate the valor and sacrifice of such brave soldiers of the Indian Armed Forces who have given their all so that we can sleep peacefully in the confines and comforts of our secure lives and continue to build our nation. बाजी तक लगा देंगे हम जान की जब बात चलेगी मेरी हिंदुस्तान की. Be it extreme weather of highest battlefield in the world, the Siachen, or the extreme heat of the northwestern borders, or the hill terrain of the northeast, or be it the long coastal frontiers of a country, our armed forces have braved it all. We therefore express our deepest gratitude to all our soldiers from the Indian Army, Navy, and the Air Force, and all the supporting forces and their families, without whom we would never have been able to see another healthy day in our lives. My humble salutations on behalf of each of us at Anam Prem Parivar to our men in uniform. Army traditions में हर नए दिन की शुरुआत रवाली ब्यूगल से होती है. ये ब्यूगल सैनिकों की दिनचर्या और उनके अनुशासन को दर्शाता है. रवाली ब्यूगल signals the beginning of the duty day on the base. और जैसे ही हमारी प्रथा रही है, हम शहीद दिन की प्रस्तुति इसी ब्यूगल से करेंगे. रवाली ब्यूगल के बाद हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा तिरंगा सदा लहराता रहे. Also, we are in the midst of most uncertain and difficult times, which have truly tested both our resilience and our faith. And as is our tradition before beginning any program, it's with due respect and devotion that we invoke the Almighty in our prayers. We are offering the Panchak, a prayer of 5 verses, and we pray for the divine blessings of the Lord of all Lords for all our endeavors. अडाणेश्वरा सर्वदेवाधिदेवा तुला वंदितो तूच माझा विसावा. तुझ्या चिंतनी चित्त माझे रमावे. जगी नित्य सांगाती माझ्या असावे. नको ज्ञान मुक्ती
अहंकार खोटा, तुझा भक्त देवादिकाहूनी मोठा. म्हणून मला भक्तीचे दान द्यावे, जगी नित्य सांगाती माझ्या असावे. त्रितापे बुडालो न थारा कुठेही, त्रिकालज्ञ तू जाणसी सर्व काही. कृपा सागरा धावूनी उद्धरावे, जगी नित्य सांगाती माझ्या असावे. तुझी वीर भक्तीच देईल शक्ती, तुझा दास होळे जगी श्रेष्ठ मुक्ती. म्हणून कृपा पात्र मजसी करावे, जगी नित्य सांगाती माझ्या असावे. अलंकार सद्बुद्धीचा देऊनिया, करा दूर अंधारही मोहमाया. तुला प्रिय जेते मला प्रिय भावे, जगी नित्य सांगाती माझ्या असावे. श्री सद्गुरु अडाणेश्वर की जय. ओम शांति शांति शांति. In the past year, when the world was reeling under the shockwaves of the COVID-19 pandemic, we realized what it meant to possess the spirit of a warrior. Despite all the added difficulties, the Indian Army rose to the occasion to offer and provide aid to the civilian warriors already fighting the pandemic. From setting up quarantine facilities in various regions to evacuation of Indian citizens stranded abroad, the Indian Army left no stone unturned in supporting the efforts during this pandemic. Military medical personnel from multiple army hospitals were at the forefront, treating patients in the hospital set up by the Defense Research and Development Organization. Even critical and much needed oxygen supplies were transported through the various transport networks of the armed forces to various areas. The contributions of the Indian Army and along with all the frontline COVID workers in the COVID pandemic are truly unmatched and unfathomable. My reverent salutations to our army brethren, whose spirits refuse to falter even in the midst of a worldwide pandemic. To the unthankable services of our forces, to the spirit of humanism within all of us and spirit of our country, I now humbly request you all to rise for the national anthem. सबसे निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए कृपया खड़े रहें।
पिछले 18 सालों से अनाम प्रेम परिवार हमारे वीर योद्धाओं की शौर्य गाथाओं से हमें अवगत कराने की कोशिश कर रहा है और उनके वीर परिवारों को हमारे प्रेम का साहस देने का हमारा प्रयास रहा है। आइए अनाम प्रेम परिवार के बारे में चंद शब्द सुनते हैं। To enlighten us more about Anam Prem, I would now like to call upon Mrs. Krupali Pidiyep Tredich. अनाम प्रेम। अ से है अल्लाह, अ से है अकाल, अ से ऑलमाइटी और अ से अक्षराणाम अकारों से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अक्षरों में जो सर्वप्रथम है अ, वो मैं, और इसी अ से है अनाम प्रेम। अनाम प्रेम एक विचारधारा है जो निस्वार्थ प्रेम के पवित्र बुनियाद पर कार्यरत है। We understand love and compassion as the energy of the infinite universal power, the Lord of all lords, and hence this unconditional love has the energy to heal and calm the conflict, hatred and violence existing in this world. निस्वार्थ प्रेम समाज के हर विवाद, नफरत और हिंसा का समाधान है। I remember having learnt in school that the entire amount of energy in the universe is constant and it only changes forms. If this is true, can we not attempt to transform our hatred into love, our violence into harmony, and our conflict into peace? At Anam Prem, it has been our effort to sprinkle love in the name of Lord of all Lords, to knit every soul together. इस प्रेम के धागे से हम समाज के हर व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए और हम इन्हें हमारा दिशा निर्देश मानते हैं। इन मौलिक कर्तव्यों के अनुसार हर नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे और इसी कर्तव्य को मद्देनजर रखते हुए प्रेम के विभिन्न प्रयोग हम करते आ रहे हैं। We like to call these our experiments with love. समाज के अलग अलग स्तरों में बसने वाले हर व्यक्ति तक इस प्रेम से हम पहुंचना चाहते हैं और पहुंच सकते हैं। उनको सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, समाज के अनेक वंचित पीड़ित लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। सोचिए, क्या कभी हमें जगह जगह पहुंचाने वाले रिक्शा चालक को धन्यवाद दिया हो या प्रेम से एक लड्डू खिलाया? समाज का कचरा दूर करने वाले सफाई कर्मचारी को दिल से दुआ दी या ठंड, बरसात और धूप में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले उस पुलिस वाले को अपने प्यार की मिठास दिलाई? कभी इस प्रेम का प्रयोग कर देखिएगा। सृष्टि का नियम है, जो बोएंगे वही उगेगा। हमें सिर्फ प्रेम को बोना है और सारी सृष्टि में वही दिखेगा। समाज के अलग अलग वर्गों के साथ, जैसे कि पुलिस है, पोस्टमैन है, नर्सेस है, परिचारिका है, फायर ब्रिगेड है, बस ड्राइवर, कंडक्टर्स है, ट्रेन चालक और गैंगमैन है और अन्य समाज पुरुष है और समाज का वंचित वर्ग है। इनके साथ हम हमारे सारे त्योहार प्यार से मनाते हैं और उनके दिलों तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह समाज के विभिन्न स्तरों पर प्रेम धारा का परिचय करते हुए हम पिछले कई वर्षों से हमारे भारतीय सेना के जवानों को और उनके परिवारों को प्रेम वंदन करते आ रहे हैं और बस आज का भी यही प्रयास है। हमारे साथ इस प्रयास में जुड़ जाइए, अनुभव तो कीजिए। धन्यवाद। Thank you, Krupali, for sowing the seeds of such beautiful thoughts in our minds. Right now, we're celebrating Ganeshotsav in our country. Every year, we are all eagerly waiting to welcome our Vignaharta, Lord Ganesha. But there's one more Vignaharta, the one who bears all the threats and dangers ever present in our lives, our Indian soldiers. They fight our country's enemies, get injured, and even lay down their lives on the Ranbhoomi, only so that no real Vigna can threaten our country and snatch away its peace and tranquility. The patriot's blood is the seed of freedom's tree, and our country is blessed to have given birth to such patriotic souls who have given their lives for protecting it. Hence, on the Ganeshotsav every year, we remind ourselves of the supreme sacrifice, the valor and the stories of victories of our brave Veer Jawans. Standing with their families, we console them for their loss and honor them for their spirit. कोरोना परिस्थिति के चलते हम इस प्रयास को प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए, परंतु इस ऑनलाइन माध्यम से
हम इन शौर्य गाथाओं का अनुभव आपके सामने रख रहे हैं। वीर परिवारों को मिलकर उनका यथोचित सम्मान करने का प्रयास हमने किया है और इन्हीं मुलाकातों में जो स्मृतियां बनी हैं उन्हें तस्वीरों के रूप में आप सबके सामने हर एक वीर गाथा के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। From the Indo-Pakistan War in 1947 to the counter-insurgency operations till date, our warriors have immortalized themselves in history and have not let any harm befall our country. It's to them that we now pay our homage before we begin the Veer Gathas. Quartered in the snow, silent to remain, when the bugle calls, they shall rise and march again. The last post bugle is a proud reminder of military discipline and fortitude. The last post is one of the regulation calls that would be heard in the evening to signal the completion of the setting of night, sentinels or sentry posts. For ceremonies, the use of last post and Ravali or the rouse is used to draw the symbolic association between the soldier's last duty of sitting sentry, what we commonly know as death, and his rising above his moral duties. It is the final call, the second of two bugle calls giving notice of the hour of retiring of the night. Just like the hour of retiring, the day the soldier achieves martyrdom, he achieves a retirement in an eternal sense. We will now be playing the last post bugle followed by the rouse. I would once again request everyone to rise for the solemn call. The last note of the last post marks the beginning of the few minutes of silence. This will be followed by the rouse. We expect everyone to maintain complete silence and remain standing throughout this. Following the brief period of silence, the rouse shall be sounded, after which the official wreath is usually laid. During the laying of wreath, the parade is in the stand at ease position. Last post bugle के बाद चंद पलों का मौन श्रद्धांजलि के हेतु धारण करेंगे, जिसके पश्चात राउस ब्यूगल से श्लोक सलामी दी जाएगी। आप सबसे निवेदन है कि आप फिर एक बार कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।
सर झुकाकर, दिल थाम कर करें उन वीर जवानों को याद जिनसे है इस देश का गौरव आबाद. Now we will be moving on to the next segment where we shall be sharing stories of valor and courage of our brave jawans. This shall be followed with the felicitation and seeking of the blessings of families of these jawans. Today, our young friends from Annampre will be presenting the Shaurya Gathas of 6 brave men who attained martyrdom recently. Kindly note that the narration of these Veer Gathas is not a mere event, but where the tales of valor and bravery of our soldiers are recited, invoking feelings and emotions of pain in the midst of a war on a battleground or run. We only wish for deep respect and gratitude in the memory of these Shaheed Jawans and their sacrifices. बहुत खुशनसीब है वो लोग जिसके हिस्से ये दर्द आया है, खुद को जलाकर जिसने इस देश को बचाया. The path of the duty of a soldier is beset with various calamities of nature, but even further is the risk of equipment related malfunctions or of causes beyond one's control. Our next Veer Gatha is about a young soldier who achieved martyrdom in active service due to an unpredictable accident. May I call upon Naresh Bagewani to give a brief introduction in English and Shubhangi Thakre to narrate the Veer Gatha. Sepoy Kailas Aikar was born on 18th of January 1994 in Amravati in Maharashtra. He completed his primary education in Amravati. Since childhood, he was extremely fond of wrestling. He was inducted into the Bihar Regiment on the 22nd of March 2013. His first posting was in Jammu and Kashmir, and since then he was a part of many counter-insurgency operations. He was then deployed in Kulu Manali in Himachal Pradesh, where he made the supreme sacrifice of his life on the line of duty on 24th of December 2020. He is survived by his parents, wife and daughter. I request Shubhangi Thakre to share with us the tale of his bravery. बिरसा मुंडा की जय. भारतीय सैनिकांच्या युद्धाची गाथा आपल्या प्रत्येक भारतीयांच्या हृदयात कोरली जाते. साहस, दुर्गम्य इच्छाशक्ती, कठोर निर्धार, ज्वाज्वल्य देशभक्ती. अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढणारे भारतीय वीर जवान. वीर सैनिक कैलाश दहिकर या शहीदाची गाथा आपल्या समोर मांडणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील पिंपळखुटा या गावी 18 जानेवारी 1994 ला एका गरीब आदिवासी कुटुंबात शिपाई कैलाश यांचा जन्म झाला. आई मंगराय व वडील कालू यांचे कैलाश एकदम लाडाचे पुत्र होते. कैलाश मुळातच हुशार व चाणाक्ष होते. पहिली ते 4थी येथे चिखलदरा येथील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये ते शिकले. आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर 5वी मध्ये नवोदय विद्यालय अमरावती येथे त्यांनी प्रवेश मिळविला. पुढे ITI करून तांत्रिक शिक्षण संपादन केले. कैलाश यांना तरुण वयातच कुस्तीची आवड होती. पिळदार शरीर यष्टीचे हे युवक 22 मार्च 2013 ला भारतीय सैन्यात भरती झाले. कर्म ही धर्म उच्चारत बिहार रेजिमेंट मधून जम्मू काश्मीर येथे ते रुजू झाले. बिहार रेजिमेंटचा 1798 पासून रक्ताचा हा इतिहास. दुसऱ्या महायुद्धात जय बजरंगबली म्हणत सगळ्यांवर भारी झाले ते बिहार रेजिमेंट. 2016 मध्ये कैलाश हे कलकत्ता येथील सिलीगुडी येथे कर्तव्यावर होते. 2015 साली एका मंगलमय दिवशी बबली यांच्याशी त्यांचा विवाह संपन्न झाला. सुखी संसाराला चैताली नावाचे गुलाबाचे फूल उमळले. 2020 ला मुलीचा प्रथम वाढदिवस करून कैलाश हे मायभूमीचे रक्षण करण्यास गेले, ते कधीही न येण्यासाठी. 24 डिसेंबर 2020
कैलाश सैनिक म्हणून भारत चीन सीमेवर हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू मनाली येथे कर्तव्य बजावत होते. प्रतिकूल निसर्ग व कमी तापमानाच्या बर्फाळ प्रदेशात मायभूमीचे रक्षण करताना सैनिकांसाठी ज्या बलून हिटरचा स्फोट होताच कैलाश यांना वीर मरण पत्करावे लागले. शहीद कैलाश दहिकर यांनी देशासाठी वीर मरण पत्करले. अशा या वीर भारतीय सैनिकास विनम्र अभिवादन. वीर माता मंगराय व वीर मत्ती बाबली यांच्या अतुल्य त्यागाकरिता वंदन करते. जय हिंद. Thank you narration Shubhangi for your heartfelt narration. एक सैनिक का जीवन गर्व और वीरता का जीवन होता है, लेकिन कभी कभी जोखिम और खतरे का जीवन भी होता है. विशेष रूप से जटिल उपकरणों के साथ काम करना जो उनके ही जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन वो इस खतरे को भी अपने देश की रक्षा के प्रति अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में लेते हैं और अंत तक सेवा करते रहते हैं. हम सिपाही कैलाश कालू दहिकर जी की महान भावना का आदर करते हैं. आपको हमारा अनंत सलाम. भारतीय सेना के ऐसे कई सैन्य दल हैं जिनकी शौर्य गाथाएं 200 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं. ऐसा ही एक दल है मराठा लाइट इन्फेंट्री. Our soldiers are always willing to put their lives on the line, and one such regiment that has always been at the forefront is the Maratha Light Infantry. This year, we will be sharing Shahid Gathas of 4 soldiers from this regiment. The Maratha Light Infantry traces its lineage to the Bombay Sepoys raised in 1768, making it one of the oldest infantry regiments of the Indian Army. The regiment has seen action in the First Anglo-Afghan War, World War I and World War II. Post-independence, the regiment has taken part in every Indian armed conflict till date. The numerous war and peacetime gallantry awards bear testimony to the frontline leadership and courage of the regiment's officers and soldiers. The battle cry has been inspired and is a sort of homage to the great Chhatrapati Shivaji Maharaj, a true visionary who fought for Swarajya till his last breath, a Swarajya that was free of any external aggression. माथे तिलक लगाती हमको वीर प्रसूता माताएं, वीर शिवा राणा सुभाष की भरी पड़ी है गाथाएं. सरहद है महफूज हमारी अपने वीर जवानों से, लिखते हैं इतिहास नया नीत जो अपने बलिदानों से. Our next Veer Gatha is about a Veer Jawan who achieved martyrdom while facing enemy fire along the LOC in JNK and retaliating with even stronger fighting, never once leaving his ground and standing firm in the protection of his motherland. I would like to invite Aghat Khanolkar to give a brief introduction in English and Kishori Thakur to narrate the Veer Gatha of Shahid Jawan Sipahi Rushikesh Ramchandra Zondhare in Hindi. Sepoy Rushikesh Ramchandra Zondhare, 6th Maratha Light Infantry. Hailing from Kolhapur district in Maharashtra, Sepoy Rushikesh Ramchandra Zondhare had joined the Indian Army in December 2018 into the 6th Battalion Maratha Light Infantry. He made a supreme sacrifice of his life in an unprovoked violation of ceasefire by the Pakistani army troops along the line of control on 13 November 2020 at Gurrez in Jammu and Kashmir. Sepoy Rushikesh Ramchandra Zondhare is survived by his parents and younger sister. Today, we offer our humble veneration to this courageous warrior. I request Kishori Thakur to enlighten us with the story of his valor. 16 नवंबर 2020 सारा हिंदुस्तान भाई दूज यानी कि भाई बहन के अटूट रिश्ते का जश्न मना रहा था. वहीं महाराष्ट्र में स्थित
कोल्हापुर जिले के बहिरेवाड़ी गांव में एक बहन ऐसी भी थी जिसके लिए वो त्योहार का दिन तो था पर वो मनाने का अवसर नहीं। भाई भी था पर तिरंगे में लिपटा हुआ, आंखों के आंसू और गर्व से भरा सीना, दोनों की वजह वो भाई था। उस दिन देश में हर एक बहन रोई थी उस भाई के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के देश के हर एक भाई बहन की जान को आबाद किया था। उनका नाम शहीद सिपाही ऋषिकेश रामचंद्र जोंधळे। ऋषिकेश जी का जन्म 4 जून 2000 में मुंबई में हुआ। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई साधना हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल गडिंग्लज से की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए शिवराज कॉलेज गडिंग्लज में प्रवेश लिया। ऋषिकेश जी पढ़ाई के साथ साथ क्रीड़ा क्षेत्र में भी काफी सक्रिय थे। रिले और डॉजबॉल इन खेलों में उनका उत्कृष्ट योगदान रहा है। 2014 में तेलंगाना में हुए नेशनल लेवल डॉजबॉल कंपटीशन में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ऋषिकेश जी के मन में बचपन से ही देश प्रेम तथा देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी। परिवार से बढ़कर अव्वल स्थान उन्होंने अपने देश के प्रति कर्तव्य को दिया। इसीलिए पिता की इच्छा के विरुद्ध जाके भारतीय सेना में दाखिल होने की तैयारी उन्होंने शुरू की और दिसंबर 2018 में वे भारतीय सेना का हिस्सा बने। बेलगांव से 9 महीनों का कठिन प्रशिक्षण पूरा करके 18 जनवरी 2020 में देश के प्रति समर्पित होने की कसम उन्होंने ली और वे 6 मराठा लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा बने। जून 2020 में उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई। तभी दिवाली के दौरान 13 नवंबर 2020 को जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी शुरू हुई। दुश्मन ने घुसपैठी का सहारा लेके हमारी सेना के काफी जवानों को जख्मी किया, पर भारतीय सेना ने भी इस छुपे वार का डट के सामना किया। इसी मुठभेड़ में मोटर फायरिंग के कारण ऋषिकेश जी जख्मी हुए। उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया गया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। देश के लिए लड़ते लड़ते ऋषिकेश जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस लड़ाई में उनके साथ और 3 जवान भी शहीद हुए। ऋषिकेश जी के परिवार में उनके पिता रामचंद्र जी, माता कविता जी और बहन कल्याणी है। ऋषिकेश जी के यूनिट के बृहदवाक्य कर्तव्य मान साहस के अनुसार ही उन्होंने वर्तन किया। देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, देश के प्रति अपना मान कायम रखा और 20 साल की छोटी सी उम्र में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का साहस उन्होंने दिखाया। मैं शतशः प्रणाम करती हूँ भारत माता के वीर सपूत शहीद सिपाही ऋषिकेश रामचंद्र जोंधळे और उनके परिवार को। जय हिंद। थैंक यू अगाधन किशोरी। सीमा सुरक्षा को बनाए रखना कभी भी आसान काम नहीं होता और इसके लिए अद्भुत व अविश्वसनीय सतर्कता और चपलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्यवाही में 1 मिनट की देरी भी कहीं जाने पर खतरा ला सकती है। सिपाही ऋषिकेश जी जैसे सैनिकों के बलिदानों के कारण ही हम इस आश्वासन के साथ सुरक्षित सोते हैं कि कोई भी दुश्मन घुसपैठ नहीं करेगा और देश की किसी भी सीमा पर हमारे देश में तबाही नहीं मचाएगा। भारत माँ के इस वीर पुत्र को मेरा शतशः प्रणाम। दिल में हौसलों का तेज तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो अपनी मुट्ठी में जान लिए फिरते हैं। Our next वीर गाथा is about a fearless soldier who fought valiantly to the every bitter end, protecting the threatened lives of civilians from the enemy mortar fire in Gurez sector of JNK along the Himalayan. I would like to invite Shweta Railapurkar to give a brief introduction in English and Parnika Sauri to narrate the Veer Gatha.
Naik Bhushan Ramesh Rao Satai was born on the 3rd of October 1992 in Katol in Nagpur district of Maharashtra. He completed his early education and obtained his bachelor's degree in commerce from Katol. Right from a young age, he loved playing with toy guns and fire at mock targets. With the ambition to fire and kill the enemies of our nation, Naik Bhushan Ramesh Rao Satai decided to join the Indian Army. After completing his rigorous training at the Maratha Light Infantry Regiment Center, Belgaum, Naik Bhushan Ramesh Rao Satai was inducted into the 6th Battalion of Maratha Light Infantry on the 26th of March 2011. A sincere and a motivated soldier, Naik Bhushan Ramesh Rao Satai served our motherland with the same courage and determination. His first posting was in the most terror-infested areas of Jammu and Kashmir. He was a part of many CI operations wherever his unit was posted. He also served as a part of the UN peacekeeping force in Sudan in South Africa. In June 2020, his unit, 6th Maratha Light Infantry, was posted in the Gurez sector of Jammu and Kashmir. Pakistani army indulges in repeated ceasefire violations across the LOC to provide cover to the terrorists infiltrating into India. On the 13th of November 2020, Pakistani troops indulged in heavy cross-border shelling along the line of control. In this cross-border firing, Naik Bhushan Ramesh Rao Satai made the supreme sacrifice of his life in the line of duty in the highest traditions of the Indian Army. He is survived by his mother, sister and brother. Today, we offer our Shraddhanjali to this valiant son of India. I request Parnika Chaudhary to kindly share with us the saga of his bravery. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हा जयघोष ऐकून 6 मराठा लाईट इन्फंट्री या रेजिमेंटच्या जवानांचेच नव्हे तर प्रत्येकाचे रक्त सळसळते. अंगात स्फूर्ती आणि चैतन्याचा संचार होतो. त्याच रेजिमेंटमधील महाराष्ट्राच्या एका शूरमर्द मावळ्याची वीरगाथा आज आपण ऐकणार आहोत. 3 ऑक्टोबर 1992 रोजी भूषण रमेशराव सते या वीराचा जन्म नागपूर जिल्ह्यातील काटोल या गावी झाला. शालेय शिक्षण ते BComची पदवी मिळण्यापर्यंतचे सर्व शिक्षण आपल्या गावीच घेतल्यावर लहानपणी बंदुकीशी खेळण्यात रमणारा वीर भारतीय सैन्यात सामील व्हायला निघाला नसता तरच नव्हत. 26 मार्च 2011 भूषण भारतीय सैन्यात भरती झाली व बेळगाव येथील ट्रेनिंग उत्तमरित्या पूर्ण करून पहिल्या पोस्टिंगसाठी जम्मू काश्मीरमधील अखनूर या महत्त्वाच्या ठिकाणी रुजू झाली. त्यानंतर पश्चिम बंगालच्या बिनागुडी येथील पोस्टिंगच्या वेळेला मैदानी खेळात विशेष नैपुण्याचे प्रदर्शन केले. युनायटेड नेशन्सच्या शांती सेनेचा हिस्सा म्हणून भारतातर्फे आफ्रिकेतील दक्षिण सुदान येथे विशेष सेवा दिली. यासाठी UN मेडल विथ क्लॅप सुदान तसेच विदेश सेवा मेडल सुदान यांनी त्यांना सन्मानित केले गेले. भारत आणि भूतानच्या संयुक्त ट्रेनिंगसाठी 3 महिने भूतानला जाऊन तेथील ट्रेनिंग उत्तमरित्या पार पाडली. त्यासाठी त्यांना विदेश सेवा मेडल भूतान यांनी सन्मानित केले गेले. भोपाळ येथील प्रमोशन कॅडरची परीक्षा अ श्रेणीत उत्तीर्ण झाल्याने त्यांची नाईक पदावर बढती झाली. अशा प्रकारे जवळपास 9 वर्ष मातृभूमीची सेवा केल्यावर सर्वोच्च वीरशीचा तो दिवस उजाडला. 13 नोव्हेंबर 2020ला गुरेज सेक्टर या भारत आणि पाकिस्तानमधील LOC जवळ असणाऱ्या भागात नाईक भूषण आणि त्यांचे सहकारी तैनात होते. पाकिस्तानी फौजेकडून नेहमीच या भागात कुरापती काढल्या जातात आणि अतिरेक्यांना भारताच्या हद्दीत यायला सोपे जावे यासाठी शस्त्रसंधीचे उल्लंघनही होत असते. अंधाधुंद गोळीबार आणि उखळी तोफांचा मारा होतो. अशी चागळीक त्या दिवशी सुद्धा शत्रूंनी केली. अचानक नागरी वस्तीला लक्ष्य करून अंधाधुंद गोळीबार आणि मोटरच्या गोळ्यांचा वर्षाव पाकिस्तानी सैनिकांनी केला. आपल्या नागरिकांचे प्राणपणे रक्षण करणाऱ्या आपल्या जवानांनी ताबडतोब चोख प्रत्युत्तर दिले. याच धुमश्चक्रीत मोटरच्या एका गोळीतील असंख्य स्प्लिंटर्स नाईक भूषण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या शरीरात घुसले. देशासाठी सर्वोच्च वीरश्री दाखवत भारतीय जवानांनी 11 पाकिस्तानी सैनिकांना यमसदनी धाडले. पण मातृभूमी आणि सर्व भारतीयांना कायमचे ऋणात ठेवून नाईक भूषण आणि त्यांचे 4 शूर साथीदार यांनी
वीरगती प्राप्त केली. भाऊबीजेच्या दिवशी लाखो भारतीय बहिणींचा एक भाऊ मानवंदना स्वीकारित अनंतात विलीन झाला. शहीद नाईक भूषण सतई यांच्या वीर माता व वीर पित्यांना मध्ये शतशः नमन. त्यांच्या लहान वीर भगिनी व वीर बंधूंना त्रिवार मुजरा. या कुटुंबाच्या त्यागाला तोड नाही. आम्हा सर्व भारतीयांना तुमचा खूप खूप अभिमान आहे. बोला हर हर महादेव. बोला श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. श्वेता और पर्णिका, आपका तहे दिल से शुक्रिया. बीते कई वर्षों में भारतीय सीमा पर हमारे जवानों ने दुश्मन द्वारा मोर्टार फायरिंग के कई कायर हमले झेले हैं. इन कायराना हमलों ने हमारे जवानों को ही नहीं बल्कि आसपास के आम नागरिकों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है. ये वास्तव में नाइक भूषण रमेशराव सताई जैसे सैनिकों का योगदान ही है जो हमारे देश में ऐसी आपदाओं से आम आदमी सुरक्षित है. नाइक भूषण रमेशराव सताई, हम आपको और आपके वीरतापूर्व कार्य को सलाम करते हैं. देश की महक अब मेरे कपड़ों से आने लगी है. अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है. Indeed, these stories of valor can bring tears in even the toughest of eyes and can pierce even the coldest of hearts and fill it with upwelling emotions. The next Veer Gatha is about a brave soldier who achieved martyrdom while retaliating against enemy fire and bombing along the border in the Nowshera sector of JNK. May I request Ananya Vijay to share a brief introduction in English, followed by the Veer Gatha narrated by Gayatri Nagpur. Havaldar Sangram Shivaji Patil, belonging to Kolhapur in Maharashtra, joined the Indian Army in the 16th Battalion, Maratha Light Infantry. He made the supreme sacrifice of his life in an unprovoked violation of ceasefire by the Pakistani army troops along the line of control on the 21st of November 2020 at Nowshera in Jammu and Kashmir. He is survived by his parents, brother, wife and 2 children. Today, we offer our respects to this brave son of India. I request Gayatri Nagvekar to share with us the story of his bravery. नमो नमः. शहीद हवलदार संग्राम शिवाजी पाटिल आपका जन्म महाराष्ट्र स्थित कोल्हापुर जिले के निगवे गांव में एक आम किसान के परिवार में 10 अप्रैल 1984 को हुआ. अपने आपकी 10वीं तक की पढ़ाई नागेश्वर हाई स्कूल येलवड़े से की. बचपन से ही आपकी क्रीड़ा क्षेत्र में रुचि रही. हॉकी और फुटबॉल ये आपके पसंदीदा क्रीड़ा प्रकार थे. बचपन से ही आपका भारतीय सेना में शामिल होने का सपना था. इसी कारण देश सेवा करने हेतु सिर्फ 19 साल की उम्र में आपने बेलगाम आर्मी ट्रेनिंग सेंटर से 9 महीने का ट्रेनिंग लेकर और पुणे में अगले 3 महीने का ट्रेनिंग पूरा करने के बाद साल 2002 में आप 16 मराठा लाइट इन्फेंट्री के सिपाही पद पर नियुक्त हुए. 1 साल की मेहनत के बाद आपकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई. उसके बाद राजस्थान, मणिपुर, ग्वालियर, बीकानेर जाकर आपने देश की सेवा का फर्ज निभाया. 30 नवंबर 2010 को आपका विवाह हेमलता जी से हुआ और आज आपके परिवार में आपके 2 बच्चे शौर्य और शिवश्री भी हैं, जो 8 और 3 साल के हैं. वर्ष 2002 से 2020 तक लगभग 18 साल आपने देश की रक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. 2019 में आप सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन आपने और 2 साल बढ़ाकर देश की सेवा करने का निर्णय लिया. दिवाली के अवसर पर आपको छुट्टी मंजूर हुई थी, लेकिन आपने वो खारिज की क्योंकि अपने परिवार के बारे में ना सोचकर देश की सुरक्षा को खुद की खुशी से आगे रखा. नवंबर 2020 के दौरान आपकी इकाई को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में तैनात किया गया था. इस इलाके में अक्सर दुश्मन सेना गोलीबारी का सहारा लेकर घुसपैठ करने की कोशिश करती रहती है. इसी कारण सुरक्षा बलों द्वारा सशस्त्र गश्त दल नियुक्त कर
इस इलाके की निगरानी और रखवाली की जाती। नवंबर 2020 में इसी प्रकार पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और बेवजह गोलीबारी और बमबारी शुरू की। जब बारूद के बादल बरसने लगे तभी आपकी इकाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का रणहुंकार देकर दुश्मन के ऊपर पलटवार किया। उसी वक्त दुश्मन के घुसपैठी के कारण 21 नवंबर 2020 को उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते वक्त आपको वीर गति प्राप्त हुई। आपका एक सपना था कि गांव में खुद का घर बने और सेवानिवृत्ति के बाद आपको पुलिस दल में भर्ती होकर देश की सेवा में बरकरार रहना था। मैं आपके शहादत को सर झुकाकर सलाम करती हूँ और फक्र है हमें कि आप जैसे सैनिक भाइयों की वजह से हम आम लोग चैन की नींद सो सकते हैं। शहीद हवलदार संग्राम शिवाजी पाटिल एक बहादुर सैनिक थे जिन्होंने भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं का पालन करते हुए अपने कर्तव्य की रेखा में अपना जीवन गंवा दिया। आज उनके परिवार में उनके वीर पिता शिवाजी जी, वीर माता सावित्री जी, वीर पत्नी हेमलता जी और वीर पुत्र और पुत्री मौजूद हैं। इस वीर परिवार को मेरा शतशः नमन। Thank you Ananya and Gayatri for your heartfelt meditation. हमारे देश के ताज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हेतु हमारे कई युद्ध नायकों के जीवन समर्पित हुए हैं। दुश्मन के हमलों, आतंकवाद और उग्रवाद से क्षेत्र की स्वतंत्रता और सुरक्षा हवलदार संग्राम शिवाजी पाटिल जैसे अथक कर्तव्य परायण सैनिकों के खून से रंगी है। उन्हें और उनके इस शौर्य को मेरा सर्वोच्च सलाम। कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। Our next वीर गाथा is about a शहीद जवान who continued performing his duties towards his nation till the very end in absolutely inhabitable climate, weather conditions and terrain in the state of Arunachal Pradesh. When it comes to counter-terrorism, infiltration or hostage rescue, no one can do the job better than the 21 Para Special Forces. The Parachute Regiment is an elite infantry unit of the Indian Army, and each Para-SF unit is specialized for a specific role. The 21 Para, also called as the Wagh Nux, is specialized in the jungle warfare, mountain warfare, and counter-insurgency, counter-terrorism operations. We have one such Shaheed Gatha of a fearless soldier from this regiment. May I call upon Rutwa Ambekar to give a brief introduction in English and Ipsita Bitskar to narrate the Veer Gatha of the Shaheed Jawan Manoraj Shivaji Sonawane in Hindi. Havaldar Manoraj Shivaji Sonawane, 21 Para Special Forces. Havaldar Manoraj Sonawane, hailing from Malegaon in Maharashtra, had joined the Indian Army in the Maratha Light Infantry Regiment and later served as a commando in 21 Para Special Forces. He made a supreme sacrifice while protecting the nation from the high altitude terrain of Arunachal Pradesh. Havaldar Manoraj Sonawane is survived by his parents, wife and 2 children. Today, we offer our Shraddhanjali to this brave son of India. I request Ipsita Bitskar to kindly enlighten us with the saga of his courage. हवलदार मनोराज शिवाजी सोनावणे, आपका जन्म 8 नवंबर 1985 में उत्तर महाराष्ट्र के जिला नासिक के मांडके गांव में हुआ। आर्थिक कठिनाइयोंवश आपके माता पिता दोनों काम पे जाते और आप अपने भाई के साथ खेतों में काम करते थे, लेकिन इस विकट परिस्थितियों में भी आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कक्षा 1 से 4 तक आप जिला परिषद की प्राथमिक स्कूल में पढ़े। आगे कक्षा 5वीं से 10वीं तक आपने कर्मवीर ना. स. देशमुख स्कूल से शिक्षा प्राप्त की।
महाविद्यालयीन जीवन आपने जनता विद्यालय में बिताया। बचपन से क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले आप अपने भारतीय सेना में कार्यरत चाचा जी दीपक जी पवार के अनुशासन और शिष्टाचार से बहुत प्रभावित हुए। भारतीय सेना का हिस्सा बनने की चाह आपके मन में पूरी तरह से घर कर चुकी थी। आपके चाचा जी समय समय पर फौज में होने वाली भर्ती की सूचना देते रहे। तभी 2003 में अपनी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आपने भारतीय सेना में दाखिल होने का प्रयास किया, परंतु अपूरे दस्तावेजों के कारण आप दाखिल नहीं हो पाए। 2 साल पूना में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की और आखिरकार 2005 में मुंबई से आप मराठा लाइट इन्फेंट्री में शामिल हुए। अपना सैन्य प्रशिक्षण मराठा लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर बेलगांव से हासिल कर आप भारतीय सेना में शामिल हुए। 2005 से 2009 तक राजस्थान में तैनात रहे। इसी दौरान आपने स्पेशल फोर्सेस में पैरा कमांडो होने का निश्चय किया और सफलतापूर्वक 2009 में 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बने। अपना पैरा कमांडो का प्रशिक्षण आगरा से पूरा किया। तत्पश्चात पोस्टिंग मणिपुर में हुई। उसी दरमियान आपका विवाह जयश्री जी के साथ 11 मई 2011 को संपन्न हुआ और 2015 में आपके यहाँ एक पुत्र रत्न तथा 2018 में कन्या रत्न के जन्म से आपका परिवार पूर्ण हुआ। सेना में आपकी पोस्टिंग राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर आसाम और मणिपुर के घने जंगलों में होती रही और आप कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का हिस्सा बने। 2020 के अक्टूबर महीने में आपकी पोस्टिंग भारत के ईशान्य दिशा में स्थित अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर हुई। अरुणाचल प्रदेश का वातावरण उन्नयन के साथ बदलता है। -डिग्री में तापमान, कम वायुमंडलीय दबाव और ऑक्सीजन की कमी रहती है। इस तरह का मौसम हम जैसे नश्वर सहन नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे सैनिक देश के रक्षण के लिए हमेशा सज्ज रहते हैं। ऐसे वातावरण में आपकी हालत खस्ता हो गई। आपको आसाम के अस्पताल में दाखिल किया गया। वहाँ के इलाज में कोई प्रतिसाद न मिलने हेतु आपको कलकत्ता के सेना अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 10 दिनों तक आप कोमा में रहे। 30 अक्टूबर 2020 को विपरीत परिस्थितियों का सामना करते करते आपने अपने प्राण त्याग दिए। ये वीर योद्धा जिसने अनेक मुठभेड़ों में शत्रु पर जीत हासिल की, प्रकृति के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया। कहते हैं, when a soldier dies, he leaves the whole nation in a state of grief. Its supreme sacrifice is etched in the annals of history for centuries to come. Jai Hind! थैंक यू रुत्वा एंड इप्सिता। एक सैनिक को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि उनकी इच्छा शक्ति प्रकृति की सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकती है और अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकती है। वे न केवल सबसे विश्वासघाती और आकस्मिक मौसम की स्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बल्कि वे सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ते हैं और उनसे कभी हार नहीं मानते हैं। खुद की जान की कीमत पर भी वे कभी भी अपने पोजीशंस नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडीड माय सैल्यूटेशंस टू वीर जवान हवलदार मनोराज शिवाजी सोनावणे जी। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। Our next शहीद गाथा is of वीर जवान Assistant Commandant नितिन पुरुषोत्तम भालेराव from 206 Cobra Battalion of the Central Reserve Police Force, one which was instated specially to battle the forces of Naxalites and other terrorist insurgencies in Chhattisgarh. I would now request Ambarish Baukar to present the brief introduction in English and Komal Gaware to share the Veer Gatha.
Assistant Commandant Nitin Purushottam Bhalerao CRPF, born on the 21st of December 1986. Assistant Commandant Nitin Purushottam Bhalerao hailed from Nashik in Maharashtra. He assumed charge as Assistant Commandant CRPF in 2018. On 20th of November 2020, at around 9 p.m, a search operation was launched by the troops of 206 Cobra Battalion in Tadmelta village of Chhattisgarh against Naxalites. While Assistant Commandant Nitin Purushottam Bhalerao was tactically moving towards the target, an IED blast took place in nearby jungle area. Despite being grievously injured, Shri Nitin Purushottam Bhalerao brought fire on the insurgent, forcing them to flee from the site. By his courageous act, he saved the life of many soldiers in his team. He was evacuated immediately for the medical treatment but later succumbed to his injuries. Shri Nitin Purushottam Bhalerao displayed an unparalleled courage and made supreme sacrifice in service of the nation. He is survived by his mother, wife and daughter. Today we offer our humble pranams to this brave soldier. I request Komal Gaware to narrate the tale of his valor. युद्ध नीति, बुद्धिमत्ता और अनुकरणीय नेतृत्व कौशल का दुर्लभ संयोजन केवल एक वीर योद्धा में ही देखा जा सकता है। और आज मैं कोमल गवारे आपका परिचय ऐसे एक वीर योद्धा से करने जा रही हूँ। असिस्टेंट कमांडेंट नितिन पुरुषोत्तम भालेराव। आपका जन्म 21 दिसंबर 1986 को महाराष्ट्र के नासिक जिला में हुआ। आप बचपन से ही होनहार और होशियार थे। आपने अपनी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई सिन्नर में पूर्ण की। आपको बचपन से भारतीय सशस्त्र बल का हिस्सा बनने की चाह थी। आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही एनसीसी ज्वाइन कर ली थी। अपने मातृभूमि की सेवा की और आपका यह पहला कदम था। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर आप 10 सितंबर 2010 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का हिस्सा बने। सीआरपीएफ के विभिन्न भागों में से आपने कोबरा स्पेशल फोर्सेस को चुना। इस ब्लैक कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग में आपको सर्वश्रेष्ठ कमांडो चुना गया। आपके व्यक्तित्व और स्वभाव से आपने अपने साथियों के बीच आपने अपने लिए एक खास जगह बना ली थी। आपको संगीत का बेहद शौक था। आपको गिटार और माउथ ऑर्गन बजाना बेहद पसंद था। 10 साल के सर्विसेज के दौरान आपने सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर का सम्मान प्राप्त किया और 2018 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया था। 29 अप्रैल 2013 को आपका विवाह रश्मि जी के साथ हुआ। 21 अक्टूबर 2015 को आपके घर एक नन्ही परी वेदांगी का आगमन हुआ। चीते की चाल और भाले के वार पर कभी संदेह मत करना, यह आप अक्सर अपने साथियों से दोहराते थे और इन शब्दों को आपने अपनी अंतिम क्षणों तक बखूबी से निभाया। असिस्टेंट कमांडेंट नितिन पुरुषोत्तम भालेराव को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक माओवादी मंडली की मौजूदगी के बारे में पहले से ही खुफिया जानकारी थी। इसी जानकारी के अनुसार उन्होंने एक तलाशी अभियान की योजना बनाई जिसमें सीआरपीएफ के 206 कोबरा यूनिट तथा जिला पुलिस बल की कई टुकड़ियों ने भाग लिया। रात के अंधेरे में जब वे सीआरपीएफ कैंप वापस ही लौट रहे थे, तब माओवादियों ने कमांडो पर घात लगाकर हमला किया। माओवादियों ने कई आईईडी विस्फोट किए। घायलों में असिस्टेंट कमांडेंट नितिन पुरुषोत्तम भालेराव भी शामिल थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने माओवादियों पर गोलियां चला दी, जिससे वे घटनास्थल से भागने के लिए मजबूर हो गए। इससे कई दूसरे जवानों की जान बची। उपचार के लिए चॉपर द्वारा उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस बलिदान के लिए हम भारतवासी उनके सदा ऋणी रहेंगे। उनके पश्चात उनके परिवार में वीर माता भारती, वीर पत्नी रश्मि, उनकी 7 साल की बेटी वेदांगी और उनके बड़े भाई आमोल हैं। आपके साहस की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। आपकी वीर एवं निष्ठा के लिए आपको शतश नमन।
जय हिंद। धन्यवाद अमरीश और कोमल हमें इस वीर गाथा से अवगत कराने के लिए। हमारे देश के बाहर दुश्मन है और फिर देश के भीतर ऐसी ताकतें हैं जो पूरे राष्ट्र की प्रगति में बाधक है, जैसे नक्सल और ऐसे अन्य प्रतिरोधक समूहों की समस्या। फिर भी असिस्टेंट कमांडेंट नितिन पुरुषोत्तम भालेराव जी जैसे प्रतिबद्ध सैनिक ने इस तरह की आंतरिक खतरों को भी बेअसर करते हुए वीर गति प्राप्त की। हम सभी की तरफ से इस वीर जवान को शतशः प्रणाम। Now, as we reach towards the next segment of today's experience, I would like to express my heartfelt gratitude to all the speakers for their earnest narration of the Veer Gathas and for giving us a brief glimpse into the soul of a soldier. The trophies handed over to the families have been inscribed with the words from the Bhagavad Gita, chapter 2, verse 37, Hatova Prapyasi Swargam, which means, having attained Veer Gati on the battlefield, the warriors attain heaven. ऐसा कहा गया है कि युद्ध के मैदान में शहीद हुए योद्धा के लिए शोक न करें, क्योंकि युद्ध में शहीद होने वाले का स्वर्ग में सम्मान होगा। रक्त वीर शहीदों का था, हर सपूत बलिदानी था, पर्वत के शिखर पर पवन चला तूफानी था, हिम प्रपात बन हिमगिरी से रक्त शत्रु का जमा दिया, विजय दिवस का शौर्य पताका देने वाला अभिमानी था। Indian armed forces have played a key role not just in the protection of our country and its borders, but also in the freedom struggles and liberation of other enslaved countries as well. And one such war where the importance could never be undermined was the 1971 India-Pakistan War. 16 December 2020 marks the beginning of 50 years of India-Pakistan War of 1971, reminding us of one of the largest military surrenders in the world after World War II. In the midst of all the celebrations of Swarnim Vijay Varsh, we would like to take you back into the time of war and to enhance your understanding of the war through an audio-visual medium. पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम उसमें लिप्त किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं था। जहां जापान और जर्मनी को भारी नुकसान हुआ, वहीं इस युद्ध के घावों ने भारत पर राज कर रही अंग्रेजी हुकूमत को भी नहीं बख्शा। आजादी के आंदोलन और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जनता का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। भारत को आजादी देने की फिराक में जालिमों ने संस्कृति, भाषा एवं धर्म के नाम पर अखंड भारत को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया और इसी विभाजन में एक और नए संघर्ष के बीज बो दिए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच के बढ़ते राजनीतिक तनाव, 1950 के भाषा आंदोलन, 1964 के दंगे और 1969 में बड़े पैमाने पर हुए जन विरोध से बढ़ते ही रहे। विद्रोह का सबसे बड़ा आघात 1970 के चुनावी परिणामों के साथ
तब आया जब आवामी लीग ने चुनावों में व्यापक रूप से जीत हासिल की और 1947 के बाद से 1 यूनिट पॉलिसी के तहत सत्ता अपने हाथ में लेने की मांग की। पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में सिर उठा रहे इस विद्रोह को अपनी सेना द्वारा कुचलने का पूरा प्रयास किया। 25 मार्च 1971 की रात लेफ्टिनेंट जनरल टीका खान के नेतृत्व में ऑपरेशन सर्चलाइट का आरंभ किया गया, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बलात्कार, लूट और नरसंहार की तबाही मचा दी। पाकिस्तानी सेना द्वारा हो रहे इस अत्याचार का असर साफ था। पूर्वी पाकिस्तान से पलायन कर रहे लोग शरणार्थियों के रूप में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में दस्तक देने लगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि युद्ध पूर्व महीनों में करीब 1 करोड़ शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आ चुके थे। भारत ने भिन्न भिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे इस शोषण के विरुद्ध गुहार लगाई, पर मानो जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपने आंखों और कानों पर पट्टी बांध रखी थी। संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ और मानवता पर हो रहे अत्याचार के कारण अब भारत के पास सैन्य हस्तक्षेप करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया था। अप्रैल 1971 में एक अस्थायी बांग्लादेशी सरकार का गठन किया गया। भारतीय सेना और रॉ ने पूर्वी पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। यहीं से मुक्ति वाहिनी का जन्म हुआ, जिसने बाद के सशस्त्र संघर्षों में पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। Pakistan Air Force suddenly struck at our airfield. 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना ने उत्तर पश्चिमी भारत में 11 हवाई क्षेत्रों पर अचानक हमले कर दिए। यह पाकिस्तान की ओर से हुए पहले हमले के साथ युद्ध की आधिकारिक शुरुआत थी और इस शुरुआत को अपनी अंतिम मुकाम पर पहुंचाने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार थी। भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान के विरुद्ध पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर लड़ रहे थे। पूर्व में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने एक साथ मिलकर एक कुशल रणनीति अपनाई। पाकिस्तानी सेना को ढाका में घेरने के लिए भारतीय सेना के आर्मर यूनिट्स और इन्फेंट्री डिविजन्स, वायुसेना और नौसेना ने साझेदारी से मिलके एक 3 तरफा हमला बोल दिया। जैसे ही भारतीय थल सेना ने पाकिस्तानी संरचनाओं पर हमला शुरू किया, वायुसेना ने भी पूर्वी पाकिस्तान में वायुदल को नष्ट कर दिया। जबकि भारतीय नौसेना ने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी नौसेना की ईंट से ईंट बजा दी, वहीं पूर्वी तट पर किसी भी प्रकार के समुद्री सहायता को दुश्मन तक पहुंचने नहीं दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 3 दिसंबर की रात को आईएनएस निपट, आईएनएस निर्गट और आईएनएस वीर मुंबई बंदरगाह से रवाना हुए। अगले ही दिन 4 दिसंबर को 2 पेटिया क्लास फ्रिगेट्स आईएनएस कच्छल और आईएनएस क्लिंटन ने मिसाइल नौकाओं के साथ मिलकर पश्चिम से होते हुए उत्तर की ओर रवाना हुए। निशाने पर था कराची बंदरगाह। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय नौसैनिकों ने रूसी भाषा में संचार स्थापित किया, जिससे हमलावर जहाजों के बीच प्रसारण को दुश्मन समझ न सके। 10:43 पर आईएनएस निर्गट के रडार ने एक बड़े लक्ष्य
पाकिस्तानी नौसेना के विध्वंसक PNS खैबर की जानकारी दी। इसके तुरंत बाद 2 और लक्ष्यों PNS शाहजहां और पाकिस्तानी सेना के लिए गोला बारूद ले जाने वाले समुद्री जहाज वीनस चैलेंजर का भी पता लगाया। बिना किसी देरी के मिसाइल बोट स्क्वाड्रन ने सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधा और अपनी स्ट्राइक्स मिसाइलों को फायर किया। इसी दौरान भारतीय स्क्वाड्रन ने तट पर स्थित ईंधन भंडारण सुविधाओं का भी नाश कर दिया। मात्र 90 मिनट में ऑपरेशन ट्राइडेंट की टीम ने 6 मिसाइल दागी और दुश्मन के 3 फ्रंटलाइन जहाजों को जल समाधि दे दी, और वो भी बिना किसी हताहत के। (1971) के युद्ध के दौरान भारतीय सेना का प्रमुख जोर पूर्वी युद्ध क्षेत्र की ओर था, लेकिन लोंगेवाला की लड़ाई में थल सेना और वायु सेना की संयुक्त ताकत ने पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन के सामरिक योजनाओं को विफल कर दिया था। भारतीय पक्ष में लोंगेवाला पोस्ट 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट के A कंपनी के पास थी, जो कि एक उच्च रेत के टीले पर स्थित थी। 4000 सैनिक T-59 और शर्मन टैंकों के समेत पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला सीमा चौकी पर हमला किया। पाकिस्तानी सैनिकों के मुकाबले संख्या और गोला बारूद में काफी कमी होने के बावजूद 23 बटालियन के बहादुर जवान अपनी पोस्ट पर जमे रहे और दुश्मन के जोरदार हमले को विफल कर दिया। रात के अंधेरे में वायुसेना भले ही थल सेना की सहायता करने में असमर्थ रही हो, लेकिन अगले दिन दोपहर होने तक दुश्मन के 22 टैंक और एवं 72 बंद वाहन इंडियन एयरफोर्स के हंटर्स के लिए आसान निशाना बन चुके थे। पूर्वी मोर्चे पर गंगा सागर की लड़ाई 1971 के युद्ध की दौरान सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक थी। 14 अगस्त को पूर्वी पाकिस्तान के गंगा सागर गांव में बसे सबसे सुरक्षित पाकिस्तानी सैन्य स्थिति पर कब्जा करने का आदेश मिला था। यह ढाका की ओर एक प्रमुख रेलवे लिंक पर स्थित था, जिसके कारण यह रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण था। यही कारण था इसे बारूदी सुरंगों से सुरक्षित किया गया था। लेकिन ढाका के रास्ते में अखोरा पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना के लिए गंगा सागर जीतना जरूरी था। सावधानी पूर्वक योजना के साथ भारतीय सैनिकों ने 3 दिसंबर 71 की रात 2 बजे अपने आक्रमण की शुरुआत की। पाकिस्तानी सैनिकों ने 2 मंजिला इमारत की मध्यम मशीन गन की गोलियां चलाई। दुश्मन की जोरदार गोलाबारी के खिलाफ बंकरों को साफ करके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना जारी रखा। काफी संख्या में हताहत होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया और 2 दिनों की कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार उद्देश्य को हासिल कर ही लिया। गंगा सागर के पतन से दुश्मन को अखौरा खाली करने पर मजबूर होना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप जल्द ही भारतीय सेना ढाका में अपनी जीत की पताका फहराने वाली थी। पश्चिमी मोर्चे पर शकरगढ़ सेक्टर भी एक भीषण युद्ध का मंच रहा। यह सियालकोट में पाकिस्तानी बेस के करीब था। भारतीय क्षेत्र में यह जम्मू से सड़क और रेल लिंक से जुड़ा था। अगर दुश्मन ने इस सेक्टर पर कब्जा कर लिया होता तो कश्मीर को हासिल करना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता। इसके अलावा अमृतसर, पठानकोट और गुरदासपुर जैसे इलाकों को भी आसानी से दुश्मन अपने कब्जे में ले सकता था। लेकिन भारतीय सैनिकों की आत्मशक्ति और साहस के आगे दुश्मन की सारी रणनीतिक योजनाएं विफल हो गई। आने वाले दिनों में भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर युद्ध में बढ़त हासिल की और दुश्मन के इलाके में लगातार सैन्य हमले किए। लड़ते लड़ते सियालकोट में पाकिस्तानी सेना के अड्डे के करीब आ गए। दिसंबर 1971 की शाम तक 5 गोरखा राइफल्स ने
पूर्वी पाकिस्तान के सिलहट डिवीजन के शहर कदमताल में खुद को मजबूत कर लिया था। इससे भारतीय पक्ष को एक बेहतर रक्षात्मक बिंदु प्राप्त हो चुका था। दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने के लिए सेना द्वारा छोटे पैमाने के हमलों की योजना बनाई गई थी। सिलहट की लड़ाई भारतीय सेना का पहला हेलीबॉर्न ऑपरेशन रही। भारतीय सेना की रणनीति के चलते पाकिस्तान की 2 ब्रिगेड सिलहट में ही बंद होकर रह गई और ढाका की रक्षा में भाग लेने में असमर्थ रही। आत्मसमर्पण करने वाले शत्रुओं की संख्या भारतीय सेना से कहीं अधिक थी। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय पूर्वी नौसेना कमान ने बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक नाकाबंदी से पूर्वी पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद से पूरी तरह वंचित रखा और पूर्वी पाकिस्तानी नौसेना और 8 विदेशी व्यापारी जहाजों को उनके ही बंदरगाहों में फंसा दिया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को 4 दिसंबर को तैनात किया गया और इसके सी हॉक बॉम्बर्स ने चित्तगोंग सहित पूर्वी पाकिस्तान के कई तटों पर हमला कर पाकिस्तानी नौसेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तानी नौसेना ने घातक सबमरीन PNS गाजी को तैनात करके जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास किया, परंतु उसे विशाखापट्टनम के तट के करीब डुबा दिया गया। वहीं पश्चिमी समंदर में 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी जहाज से दागे गए 2 टॉर्पीडो INS खुखरी से टकराए। INS खुखरी के कप्तान कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला ने सर्वोत्तम नौसैन्य परंपरा को अपनाते हुए अपनी जगह अपने सभी साथियों को सुरक्षित बाहर निकलने और सभी को जहाज छोड़ने का आदेश दिया। चौदह दिसंबर 1971 को श्रीनगर हवाई क्षेत्र पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 F-86 जेट विमानों द्वारा हमला किया गया। पाकिस्तानी सेबर्स ने सोचा कि हमले के लिए 4 विमान और ऊपर से कवर करने के लिए 2 विमान काफी होंगे और वे भारतीय नैट्स फाइटर जेट से हाथापाई के पहले ही घाटी में तबाही मचाकर निकल जाएंगे। उन्हें लगा कि यहाँ शिकार करना उनके लिए आसान होगा, लेकिन भारतीय वायुसेना के दी फ्लाइंग बुलेट्स द्वारा तेजी से दिए जाने वाले जवाब का दुश्मन को कोई अंदाजा ही नहीं था। पाकिस्तानी विमानों के अधिक संख्या में होने के बावजूद भारतीय 2 सदस्यीय टीम ने दुश्मन को कड़ी टक्कर दी और उन्हें शहर और हवाई क्षेत्र के खिलाफ अपने हमले को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं गुजरात में स्थित भुज हवाई पट्टी को भी पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा हवाई हमलों में नष्ट कर दिया गया था और मात्र 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में युद्ध के दौरान ही फिर से बनाया गया था। संपूर्ण युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना एक विस्तृत श्रृंखला का संचालन करने में सक्षम रही। सेना का समर्थन, हवाई युद्ध, बमबारी, दुश्मन की रेखाओं के पीछे पैराड्रॉपिंग, दुश्मन के लड़ाकों को वास्तविक लक्ष्य से दूर खींचना इत्यादि में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को हमेशा एक हाथ नीचे ही रखा तथा युद्ध को शीघ्रता से भारत की ओर मोड़ते हुए अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। तेरह दिनों की छोटी अवधि के भीतर भारतीय सशस्त्र सेना की प्रभावी रणनीतियों और भारतीय सैनिकों की प्रबलता और सक्षमता ने भारत को तेजी से जीत दिलाई। पाकिस्तानी सेना को नौसेना, वायु तथा जमीनी मोर्चों पर बहुत क्षति पहुंची और उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स में भारतीय पूर्वी कमान के GOC-in-C लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तानी पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के द्वारा आत्मसमर्पण के कागज पर सही की गई। युद्ध के अंत में पाकिस्तान के लगभग 8,000 लोग मारे गए और 25,000 घायल हुए तथा लगभग 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों ने अपने हथियार डाले। अंततः पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त अब
एक नया देश निर्मित होने जा रहा था। इस युद्ध में भारतीय हताहतों की संख्या 3000 थी और करीब 12000 अन्य घायल हुए थे। ये श्रद्धांजलि न केवल इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए है, बल्कि उन लापता 54 वीरों को भी है जो दशकों से युद्ध बंदियों के रूप में पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। ये श्रद्धांजलि उन वीरों और अकीर्तित नायकों के लिए है, हर सैनिक के लिए है, हर अधिकारी के लिए है जिन्होंने इस लड़ाई को अपनी पूरी आत्मशक्ति के साथ लड़ा। ये श्रद्धांजलि उनके अदम्य साहस, धैर्य और दृढ़ता के लिए है जिन्होंने हमारी राष्ट्र की संप्रभुता के लिए अपने जीवन के स्वर्णिम वर्षों का बलिदान दिया। हम इन वीर सपूतों के सदैव ऋणी रहेंगे। सर्वोच्च सम्मान और हृदयस्थ गहरी कृतज्ञता के साथ इन वीरों को शत शत नमन। जय हिंद की सेना। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम है आजादी। इस युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में भारत सरकार ने इस वर्ष को स्वर्णिम विजय वर्ष घोषित किया है। बस सारे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अनंत ज्वाला से 4 विजय मशालें जलाई जाएगी और 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के गांव में ले जाई जाएंगे। We will now conclude this experience with our Prarthana Ashtam, which is a prayer to the Almighty for peace and positivity at all times. Because a prayer should not be regarded as a duty which must be performed, but rather as a privilege to be enjoyed, a rare delight that is always revealing some new beauty. गुरु माऊली करुणानिधे श्री सद्गुरु अडाणेश्वरा अविनाशी आदि सिद्धतु तेजोनिधि शिवसुन्दरा वात्सल्य सिन्धु चिन्मया शुभशक्ति शांती सागरा झालो तुझा आधीन मी चरणासी देई आसरा काया आणि वाचा मने राहो सदा शुद्धाचरण आत्मोन्नती स्तव हो दे नित भक्ति ज्ञानाचे भरण होई सुगंधित कर्मते तव भक्ति ओलावा जिथे सत्संग यास्तव लाभुदे वास्तव्य तू करीसी तिथे वाढो निरंतर अंतरी सर्वा प्रति आत्मीयता जुळवावया अवघी मने दे प्रेरणा सोशिकता कष्टी अनाथा दुःखिता हसवावया सामर्थ्य दे महिमा तुझा ना जाणती त्या जाग आता येऊ दे जिंकावया हे षड्रिपू अमुचे मनोबल वाढू दे मी तूपणा
गळुनी पडो वृत्ती अदंभी हो दे, तव भक्ती मार्गे चालता खंबीर निर्भय हो दे, अध्यात्म गोडीने आम्हा सहजीवनाची दृष्टी दे, चिंता न ग्रासो मना तव चिंतनी मन रंगू दे, मंजूर तुझ तेची घडे स्वीकार करण्या शक्ती दे, येता घरा सुख संपदा अथवा कितीही आपदा, भक्ता निरंतर रक्षिसी निष्ठा ढळ राहो सदा, वृत्ती निरागस होनी मनही सदानंदी असो, वाणीत गोडी लीनता तव भक्तीची शक्ती असो, चातुर्य बल सद्बुद्धीने पुरुषार्थ साधो चारही, ऐहिक वैभव कीर्तीची इच्छा न उपजो स्वप्नी, निसंग वृत्ती बाळुनी उद्योगरत आम्ही असो, कर्मात ज्ञानाचा तसा तव भक्तीचा परिमल असो, कधी यत्न सिद्धीची वृथा चिंता धीरताही नसो, परिसर्व कर्तृत्वानिशी ध्येयाकडे दृष्टी असो, जगतास सद्गुरु भक्तीचा तव भक्तीने महिमा कळो, शांती प्रचिती येऊनी संदेह अवघेची गळो, मजला कळो वाना कळो ब्रह्मस्थिती आत्मस्थिती, अद्वैत पदिने परी देद्वैत भक्ती सद्गती, श्री सद्गुरु अडाणेश्वर की जय। ओम शांति शांति शांति। Our flag today waves with pride, not because of us who struggle in our day-to-day endeavors in pursuit of personal gains, but because of the bravery and sacrifices of such martyrs who are ever ready to lay down their lives for the glory and dignity of the nation. I sincerely wish to express my gratitude to all these brave men of our country. इसी के साथ हम आप सभी से भी विदा लेते हैं। Please remember, the program is over, but our work is not yet. ये सिर्फ कार्यक्रम का अंत है, इस कार्य का नहीं। यही एहसास अपने दिल में रखते हुए हम सभी हमारे सारे डिफेंस फोर्सेस और उनके परिवारों को वंदन करते हैं और जरूरत के वक्त में उनके काम आ सके, यही प्रार्थना और प्रयास करते हैं। धन्यवाद। तिरंगे को तुम कभी ना झुकने देना, देश की बढ़ती शान कभी ना रुकने देना, यही अरमान है बस इस दिल में कि ऐसे ही आगे तुम बढ़ते रहना। जय हिंद।